دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ جی فرمائیں۔ جی حضرت خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ نہیں، اللہ کے ساتھ آپ جو ہے مردوں کا بھی لگاتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں۔ آپ کا نام کیا ہوا حضرت؟ میرا نام غلام غوث رضوی ہے۔ ارے بہت اچھا بات ہے، ایک نمبر۔ جیسے میں تو آپ جیسے لوگوں کو جو نا پوچھتا ہوں۔ غلام سر، ہلو، پورا نام لے، پورا نام غلام غوث۔ ہاں غلام سر نہیں، غلام سر میں آپ کو بولوں گا ابھی شارٹ میں، جس میں آپ کی تو غلام سر، ہلو جی فرمائیں۔ جی غلام سر، میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ مشرکین مکہ کا شرک جی، اور آپ کے جو بریلوی جو شرک کرتے ہیں اس میں فرق کیا ہے، یہ میں جاننا چاہ رہا تھا۔ مشرکین مکہ اور بریلوی کے جو شرک ہیں وہ آپ کے نزدیک دونوں یکساں ہیں کیا؟ ایک دم سیم ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مشرکین مکہ سے بھی اعلیٰ ترین مشرک ہے بریلوی۔ اچھا، مثلاً جی پہلے آپ فرق تو بتائیں، آپ فرق نہیں بتا پائیں گے تو میں ایسا کر دوں گا۔ وہ فرق پہلے یہ تو بتائیں، آخر دونوں اگر مشرکین مکہ سے بھی زیادہ اگر مشرک بریلوی ہیں خطرناک والے مشرک تو میں بتاؤں گا فرق ہے یا نہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ بتا دیں گے فرق کہ ہاں جو مشرکین مکہ تھے اس سے بھی زیادہ آپ کی یہ ہیں خطرناک، اس سے بھی خطرناک شرک کرتے ہیں، یہ دن رات شرکیں کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً میں بتا دوں گا، پہلے آپ ایک فرق تو بتائیں۔ آپ بولے کہ نہیں، آپ نہیں بتا پائیں گے تو پھر میں بتا دوں گا۔ ارے میں تو بات ہی کرنے کے لیے آیا ہوں سر۔ ہاں بات کرنے کے لیے تو بات تو ہوگی، وہ تو ہوگی ہی شرک پر بات، لیکن آپ سوال جو کیے ہیں تو پہلے آپ بتائیں گے تو صحیح کہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں بریلویوں کے عقائد۔ بدتر نہیں سر، خطرناک والے بدتر، خطرناک والے ایک دم کافی تاکید کے ایک ساتھ۔ دم اتنا خطرناک ہے کہ یہ اللہ کو مانتے، مطلب کہ یہ اللہ کی ذات میں جس طرح شرک کرتے ہیں نا، قسم اللہ کے مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اچھا، وہی مثلاً پوچھ رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں گا۔ پہلے آپ مجھے ان کے شرک پر اپنے شرک پر ایک فرق آپ بتائیں، ایک فرق بتائیں تاکہ سمجھ میں تو آئے کہ آپ بات کرنے کے قابل بھی ہیں کہ کس حساب سے بات کیا جائے۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، میں ایسے باتوں کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا۔ بالکل جی، بہتر۔ خیر، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہی ہوگی، ویسے آپ اہل حدیث غیر مقلد ہیں یا دیوبندی ہیں، یہ بھی تو بتا دیں۔ میں اہل حدیث ہوں، غیر مقلد لفظ بھی یوز نہیں ہے، نہ ہی کوئی مقلد ہے نہ ہی کوئی غیر مقلد ہے۔ چلیں اچھا سنیں، تو کہتے ہیں کیا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21 میں جا کر کے دیکھ لیں، یا اگر حافظ ہیں تو پتہ ہوگا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں معبود بنا لیے جو پیدا کرتے ہیں۔ معبود یعنی کہ وہ کسی اور کو عبادت کا مستحق بھی سمجھتے تھے، معبود بھی کسی اور کو سمجھتے تھے، جو کہ کوئی بھی بریلوی کسی کو معبود نہیں سمجھتا۔ آپ بتائیں۔ بولیے آپ۔ یہ بھی ایک بتایا ہوں، ویسے میں بات کو نہیں دینا چاہتا۔ نہیں غوث سر، آپ بتائیں۔ آپ ماشاء اللہ اچھی گفتگو کر رہے ہیں، بہت اچھی بات آپ نے بیان کی کہ انہوں نے معبود بنا لیے ہیں۔ جی میں آپ سے ایک بہت چھوٹا سا بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایک آدمی معبود سمجھ کر ایک کام کرے اور ایک آدمی معبود نہیں سمجھ کر وہی کام کرے، تو مثلاً بتائیں تو صحیح کہ آخر کون سے کام معبود والے ہیں جو کہ اس کو نہیں سمجھا جاتا پھر بھی اس کو لوگ کرتے ہیں۔ مثلاً بریلوی یہ بتا رہا ہوں غوث سر، میں نے آپ سے بہت سمپل سا آپ سے سوال کیا، دیکھیں تھوڑا سا آپ دماغ کو کھولیں، بات بہت اچھی ہو رہی، بہت علمی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ کوئی لنگو پنگو سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی معبود سمجھ کر ایک کام کرے اور ایک آدمی معبود نہیں سمجھ کر وہی کام کرے، کیا دونوں یکساں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایک منٹ، پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک سوال کیا گیا تھا ابھی تک اس کا جواب اب دیا نہیں۔ پریشان نہ ہو، میں نے آپ سے سمپل سوال آپ کی بات پر وضاحت طلب کی ہے
آپ نے کہا کہ وہ معبود سمجھ کر کرتے تھے، معبود مان کر کرتے تھے. میں نے آپ سے بہت سمپل سا کیا تو آپ کے ماتھے سے پسینہ ابھی چالو ہو گیا. میں نے کہا کہ ایک آدمی معبود سمجھ کر کرے اور ایک آدمی معبود سمجھ کر نہیں کرے، اور کام دونوں وہی کریں. نہیں تو اس پہ بات ہوگی، پہلے ایک سوال کو تو کلیئر کر لیں. بات وہی ہے نا، معبود پر ہے نا، سمجھنا اور نہیں سمجھنا. نہیں سمجھ سر ایک سیکنڈ پلیز کیپ بدتر خطرناک آپ نے خطرناک بدتر بولا تو میں نے آپ کو. گوسر میں آ رہا ہوں، وہیں پر آ رہا ہوں. گوسر پہلے آپ سے میں نے یہ بہت سمپل سا سوال کیا، آپ کی بات پر ہی آپ نے کہا کہ معبود سمجھ کر. تو میں نے کہا کہ وہ معبود سمجھ کر کرے اور ایک آدمی معبود نہیں سمجھ کر کرے، کام وہی کرے، تو دونوں یکساں ہوں گے نا مشرک. آپ کی بولتی کیوں بند ہو گئی گوسر؟ میری بولتی بند نہیں ہوئی ہے. دیکھیں تو جواب تو دے میری بات کا. دونوں یکساں ہوں گے یا الگ الگ ہوں گے؟ ایک مشرک ہوگا اور ایک موحد ہوگا. حائل ہے. ویسے میں شریر مزاج کا آدمی نہیں ہوں کہ میں آپ کو باتوں میں الجھا دوں. نہیں گوسر غلط مت بولی، ریکارڈنگ آ رہی ہے، لوگ سنیں گے. میں باتوں پر نہیں الجھا رہا ہوں آپ کو. میں نے آپ کی بات پر ایک سوال کیا، آپ مجھے اس کا جواب دے کر کے بات کو آگے بڑھے، پھر میں اپنی بات بتاؤں گا. ذرا دیکھیے، تو پہلا سوال کیا اس کا میں تو جواب دے دیا، پھر میں جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب دیا. بات بتاؤں گوسر مسئلے کا حل نہیں ہوتا. گوسر میں آپ سے کہوں کہ آپ چائنا جا رہے ہیں، آپ بولے ہاں کہ میں چائنا جا رہا ہوں. میں آپ سے پوچھوں گا نا کہ بھائی پلین میں کہاں جائیے گا، کدھر سے جائیے گا؟ آپ بولے گا میں آپ یہ عجیب سوال کر رہے ہیں، میں تو پانی کی جہاز سے جا رہا ہوں. جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ چائنا جا رہے ہیں تو میں کہوں ہاں میں چائنا جا رہا ہوں، پھر میں پوچھوں گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہیں نہیں اس کو نہیں میں نہیں جا رہا ہوں کہیں نا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. ارے بھائی تو یہ کوئی میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں تو یہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب دے دیا، آپ مجھے بھی سوال کا جواب. گوسر آپ سے نہیں ہوگا. دیکھیے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، چلے آپ سے نہیں ہوگا گوسر. بڑا افسوس، بہت افسوس کا مقام ہے. گوسر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. جواب دیجیے. دیکھیے گوسر میں نے آپ سے بہت اچھا سوال کیا کہ دونوں یکساں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی روح کہاں پہ؟ گوسر مجھے بولنے دیں یا پھر آپ بولیں. یہ بدتمیزی ہے گوسر کہ آپ مجھے بولنے دیں یا آپ بولے. بدتمیزی کرنے لگا، اللہ معاف کرے. کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ مجھ کو بولنے نہیں دے رہے، بولنے دیں نا. اچھا بولے آپ اپنے ٹائم میں بول. تو سامنے کرام دیکھیے گوسر سے میں نے بہت سمپل سا سوال کیا. ہلو 2 منٹ متعین کر لیں. ہاں 2 منٹ کر لیں کوئی بات. جی چلے. ڈاکٹر سے میں نے بہت سمپل سا سوال کیا تھا کہ ایک آدمی معبود سمجھ کر ایک کام کرے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ معبود سمجھ کر کرتے تھے، اور ایک آدمی معبود نہیں سمجھ کر وہی کام کرے. دونوں یکساں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان کی روح آتما جو ہے سب کانپنے لگی، تھر جان گئے کہ جو ہے گرفت میں آنا شروع ہو گئے. چلے کوئی بات نہیں، یہ جواب نہیں دیں گے کیونکہ کام وہی کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. بس وہ فرق یہ ہے کہ وہ معبود سمجھتے تھے اور یہ معبود نہیں سمجھتے. کمت دونوں ایک کرتے ہیں اور بہت زیادہ خطرناک والا کرتے ہیں. اب میں نے کہا کہ دیکھیے آپ مشرکین مکہ سے بھی خطرناک ہیں. کیسے؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. قرآن کی آیت ہے عنکبوت ہے، آیت نمبر 65 ہے نا. دیکھیے سامنے کرام میں آپ پڑھتا ہوں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ عنکبوت آیت نمبر 65 65 نا. جی ہاں آپ پڑھیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. پڑھیں. جب یہ کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ کو پکارتے ہیں اور خالص اس کی عبادت کرتے ہیں. اچھا، یعنی کہ آپ مطلقاً پکارنے پہ آ گئے. آپ کو سر رکے پہلے میں مجھ کو پڑھنے کے مطلقاً اور جو ہے مقید میں آپ کو بتاؤں گا. 17 پہ شروع کیا سر رکے سر، مطلقاً پر ہی آ جاؤں گا میں. پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور خالص اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. سامنے کرام دیکھیے بریلویوں سے پوچھیے، قسم اللہ کی پوچھیے کہ میرے بھائی جب تم مصیبت میں آتے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ یہ کہیں گے یا غوث یا علی. یہ پہلو پکڑ. مشرکین مکہ جو خالص اللہ کو پکار رہے ہیں، پیور اللہ بول رہے ہیں، یہ تو پیور ہے. اور یہ جو ہے اللہ کیا بول رہے ہیں، جھٹ شرک کرنے لگ جاتے. کیا شرک کرنے لگتے؟ جو بریلوی مصیبت میں کرتے ہیں، خاص مصیبت میں. مشرکین مکہ خاص مصیبت میں اللہ کو پکارے تو مشرک، اور یہ مردوں کو پکارے تو مسلمان. سامنے کرام دیکھیے کتنا خطرناک ہیں، کیونکہ احمد رضا صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، کبھی انہوں نے یا اللہ نہیں کہا.
आप मुझे बताएं, एक मिनट मुझे बोलने दे, फिर अरे सर रूह खर रही है आपकी, रुक जाए सर। देखें अब बॉस सर मुझको बताएं कि मैंने जो आयत पढ़ी है तो मुतलकन का मतलब क्या है यहाँ पर। अरे भाई मुतलकन हो चाहे मुक़य्यद हो, आदमी मुक़य्यद में क्या हो, मुतलकन में आदमी भाई फर्दन ही तो इबादत करता है, अल्लाह को पुकारता है। क्या करना है मुतलकन को लेकर, मतलब आदमी मुतलकन को अल्लाह की बात अलग करेगा, मुक़य्यद में अलग करेगा, जमा में। भाई अजीबो गरीब फलसफा है। इबादत तो इबादत होगी ना। चले इसका जवाब दें और मुझको फर्क बताएं। चलिए हो गई बात आपकी। पहली बात ये है कि पहले तो आप सवाल किए कि मुशरिकीन मक्का से भी बदतर हैं बरेलवी। तो मैं कहा मसलन, तो आप कहें हाँ इसका मैं जवाब दूंगा। पहले ये बताएं कि कोई एक आप मिसाल पेश करें जिससे ये साबित होता हो कि मुशरिकीन मक्का के अकायद जो थे वो बरेलवी के नहीं। तो आप ये सवाल किए तो मैं ये सवाल का जवाब दे दिया। मैं ये सवाल का जवाब दे दिया सूरह अंबिया की आयत पढ़ करके। फिर उसके बाद जब मैं ये जवाब दे दिया तो उसके बाद फिर आप कहें, फिर मैं कहा कि आप पहले सवाल का जवाब दिए नहीं कि दोनों में आखिर मुशरिकीन मक्का से भी बदतर हैं बरेलवी। तो आप कहें मैं इसका भी जवाब दूंगा, फिर आप फिर एक और सवाल ठोक दिए। तो मैं आपसे तो सिर्फ इतना ही पहले ये कहूंगा कि देखिए वाकई अगर आप इस्लाह की गर्ज से बात इस्लाह नहीं कर रहा हूँ मैं, आपका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। नहीं, आप पोस्टमार्टम की नियत से मेरे इस्लाह नहीं कर रहा हूँ मैं आपका। अच्छा ठीक नहीं हो रहा है, आप आगे बढ़े। आवाम की तो इस्लाह होगी ना इससे। हाँ आवाम सुनेगी तो पोस्टमार्टम देख के आवाम का इस्लाह होता। आगे बढ़े। हाँ कोई बात नहीं। तो वही मैं कह रहा था कि पहले अगर आप एक सवाल को हल कर देते, उसका जवाब दे देते, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि हाँ उस नजरिए पे अगर नियत हो तब शिरक होगा या नहीं होगा, फिर उस पर बात करेंगे। अब सवाल पे सवाल ही अगर करते रहेंगे, मिसाल के तौर पर आप ही ने मिसाल दिया, आप ही ने कहा कि मान लिया आप चाइना जा रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि आप चाइना जा रहे हैं तो आप कहिएगा हाँ, तो उसके बाद आप अपने मिसाल में खुद ही फंस गए। अरे भाई जैसे ही आप मुझसे जब पूछ रहे हैं कि आप चाइना जा रहे हैं, मैं कहूँगा हाँ मैं चाइना जा रहा हूँ, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप जवाब दीजिएगा या फिर आप ये कहिएगा मैं अपने सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले आप ये बताइए वहाँ जाके कीजिएगा क्या। अरे भाई ये उसूल नहीं होता बात करने का, ये तरीका नहीं होता, बल्कि एक दायरा होता है, उस दायरे में रह करके इंसान को बात करनी चाहिए। फिर से मैं आपसे वही सवाल करता हूँ कि आपने कहा कि मुशरिकीन मक्का से भी बदतरीन अकीदा जो है, बदतरीन शिरक करते हैं बरेलवी। खतरनाक। हाँ खतरनाक शिरक करते हैं। जी फरमाए। हाँ वही सवाल। देखिए सामने कराम, मैंने इनको जवाब दिया कि मुशरिकीन मक्का मुसीबत में खालिस अल्लाह को पुकारते थे, खालिस प्योर कर करके, और ये मुसीबत में मुर्दों को पुकारते हैं। तो ये बदतरीन हुए या जो है नहीं हुए? ये मैंने तो जवाब दे दिया, बोल रहे जवाब दीजिए। अब फिर इन्होंने कहा था कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, बता दिया सूरह अंबिया की आयत से। हम बोले यार वो एक आदमी माबूद समझ कर करे और एक आदमी माबूद नहीं समझ कर करे। इन्होंने कहा नियत, तो नियत में क्या है कि हम लैट्रिन में जो खा रहे हैं, नियत है मेरा कि हम ये मलगोबा खा रहे हैं, तो हो जाएगा क्या? लैट्रिन है ना होगा जी, नियत कर लो कि नहीं हम जो है मलगोबा खा रहे हैं और खा रहे हो अपना लैट्रिन। देखिए आप मुझको मेरे घर में बोलने दीजिए, फड़फड़ाइए नहीं। आप मुझको गौर सर, आप मुझको बताइए कि मैंने जो बात बोली फैजा आ रहा कि वो बिल्कुल की जो मैंने आयत पढ़ी उससे आप बदतरीन साबित हुए। वो मुसीबत में प्योर करके अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह बोल रहा प्योर है, खालिश प्योर। आप मुर्दों को पुकार रहे हैं, आप जो काम अच्छा शिर्क करने लग जाते, तो शिर्क कैसे करने लगते? मान अबूदू इल्ला युकर्रिबूना लिल्लाहि ज़ुल्फा, और फिर क्या कहते हैं कि और ये कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारे सिफारसी हैं, यही काम बरेलवी करते। फर्क क्या है? आप मुझे अभी तक एक फर्क नहीं बताया। आपने बोला समझ पर तो बहुत कुछ हो जाता है, मैंने आपको समझ पर जो क्लियर कर दिया। आप मुझको फर्क बताएं ताकि लोगों को बात समझ में आए कि फर्क क्या है, क्योंकि मैंने आपको बदतरीन साबित कर दिया। चले शुरू करें। चलें, देखिए आप कहें कि एक फर्क भी नहीं बता पाया, कितने बड़े झूठे हैं आप। खुद पर क्यों आप खुद को जहन्नम का मुस्तहिक क्यों बना रहे हैं यार? आप जो पहले जो सवाल किए तो मैं शुरू में कहा था, देखिए मैं बातों को तूल नहीं देना चाहता, मैं शांत मिजाज का आदमी हूँ। मैं पूछेंगे ये है कि एक एक सवाल का जवाब दे। जब आपने जैसे मुझसे कहा कि आखिर उनके अकायद और आपके अकायद में क्या फर्क है बताएं, तो मैं पहले ही कहा कि अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह अंबिया में कि अमित्तखज़ू आलिहतम मिनल अर्दि हुम युनशिरून,
क्या उन्होंने जमीन में से माबूद बना लिए जो पैदा करते हैं? यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, क्या उन्होंने जमीन में से माबूद बना लिए जो कुछ पैदा करते हैं? तो यानी कि वो लोग दूसरों को माबूद बना लिए थे, जो इबादत का मुस्तहिक अल्लाह के अलावा किसी और को ठहरा लिए थे। हालांकि बोलेंगे तो और बहुत सारे ऐसे फर्क हैं जिससे ये साबित होता है कि मुशरिकीन मक्का के अकायद कुछ और थे। जैसा कि आप उठा लें सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 उठा लें कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, वयअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यज़ुरुहुम व ला यनफ़उहुम, वो अल्लाह के सिवा उन चीजों को पूजते थे जो न उन्हें नुकसान दे न नफा। और अगली आयत में फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वत्तखज़ू मिन दुनिही आलिहतन ला यख़लुक़ून शैअन व हुम यख़लुक़ून व ला यमलिकून लिअनफुसिहिम ज़र्रन व ला नफ़अन व ला यमलिकून मौतन व ला हयातन व ला नुशूरा। उन्होंने अल्लाह के सिवा और खुदा इलाह बना लिए जो कुछ नहीं पैदा करते और खुद पैदा किए जाते हैं, और नहीं मालिक हैं अपनी जानों के लिए नुकसान और नफा के, और नहीं मालिक है मरने जीने के और न उठने के। अब जरा सोचे कि वो अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है उन्होंने अल्लाह के सिवा और खुदा बना लिया, वत्तखज़ू मिन दुनिही आलिहा। अब खुदा खुद कह रहा है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और को वो इलाह बना लिए थे। बताएं कि कौन अल्लाह के अलावा दूसरों को इलाह बना लिया है। हालांकि पूरा हो गया हैं बहुत सारे। मुझे इतना आपसे मैं सर करता हूँ सर, हो गया, रुक गया। जो थे वो मुशरिक किस वजह से थे? मुशरिक सिर्फ गैरुल्लाह को पुकारने की वजह से या उसकी कोई और वजूहात थे? ये सवाल आपसे मेरा कर्ज है, पता करने की कोशिश कीजिएगा। सर बता रहा हूँ। जी बताएं। सामीन किराम देखें, ये बार बार ये गौस सर क्या कर रहे हैं कि वो पूछते थे, वो इबादत करते थे जो नफा देना और ना नुकसान दे। इससे खिलाफ किसको है? जैसे आपके मुर्दे आपको ना नफा देते हैं ना नुकसान देते हैं, और आप उनकी इबादत करते हैं। वो वैसे जो है बुत के रंग में अपने मुर्दों की इबादत करते थे। फर्क क्या है यार? वही तो बात है। हम कहाँ इख्तलाफ कर रहे हैं कि वो इबादत नहीं करते थे? हम कभी बोले क्या? वो इबादत करते थे, आप भी इबादत करते हैं। आपको तो फर्क करना था। आप बोलते हैं अरे भाई इससे इख्तलाफ किसको है? वो इबादत करते थे तो आप क्या करते हैं? वही करते हैं ना। आप तो एक फर्क नहीं कर रहे। फिर इन्होंने क्या कहा कि वो पुकारते थे क्या? मेरे भाई अगर नहीं पुकारते थे तो सिफारिश होगी कैसे? और वो कहते हैं कि रब के पास हमारे सिफारशी हैं, और मान अबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनके बात नहीं करते किसी वो सिर्फ हमें अल्लाह के करीब कर दें। कैसे होगा आदमी करीब? अच्छा, और आ जाइए, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ना, वो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। उन्हें पुकार कर दे, उन्हें चाहिए कि जवाब दे। अब ये बोलेंगे कि नहीं, यहाँ जो है इन्नल लज़ीना तदऊना में जो है चुप करो, तदऊना में जो है वो पुकार नहीं, इबादत होगी। तो इबादत होगी तो भाई वो तो अल्लाह बोल रहा जवाब लाओ, बंदे हैं तुम्हारी तरह, तो भाई जवाब कैसे लाया जाएगा? पुकार करना। और अहमद रजा ने कई जगह यदून और तदून का तर्जुमा जो है पुकार किया है कई जगह, और जहाँ बेचारे फंसे वहां उन्होंने इबादत कर दिया। तो भाई इबादत होगी कैसे? पुकार करना। हम बोलेंगे कि वो मेरे गौस भाई मेरे लिए अल्लाह से सिफारिश कर देंगे, तो पुकारेंगे ना गौस भाई जरा सुने कि बिना पुकारे सिफारिश कर देंगे गौस भाई? या मतलब बिना अल्लाह को पुकारो, मुर्दों को बिना पुकार के सिफारिश करवाओ। भाई फर्क बताइए। अभी तक देखिए आप फर्क नहीं बता पाएंगे। आपका लास्ट टर्म है, इसके बाद मैं कॉल करके रिकॉर्डिंग आपका टांग दूंगा आपके ऊपर। चलिए शुरू करें। देखें तो फिर से वही बात मैं कर दी। बताएं, आप बोले फर्क बताएं। क्या मैं आपको जो कुरान पाक की जो आयत मुबारका पढ़ के सुनाया हूँ कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वत्तखज़ू मिन दुनिही आलिहा, इससे अल्लाह के सिवा और खुदा बना लिया। अब जरा वैसे आपने भी तो बना लिया। अब जरा खुद सोचे कि वो अल्लाह के अरे वैसे खुदा आपने भी तो बना लिया। हजरत आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, फर्क बताइए। बात को आप भी गलत बात कर रहे हैं। एक मिनट। अल्लाह खुद कह रहा है कि वो औरों को खुदा बना लिया, और आप कह रहे हैं आप बना लिए और वो खुदा। सुने ना एक मिनट। और यही तो अजीज आप एक ही बात को मेरे अजीज आप मैं फोन रख रहा हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग को मैं टांग रहा हूँ। नहीं अभी कर्ज है, आपने मेरे सवाल का जवाब। क्या कर्ज है भाई? लोग को सुनने तो सब तो मैंने जवाब दे दिया। कर्ज कहाँ है? आपने क्या फर्क बताया गौस भाई? उनके शिरकी अकायद महज गैरुल्लाह को पुकारने की वजह से वो मुशरिक। अच्छा, गैरुल्लाह को पुकारना भी शिरकी अकायद था और भी था। चले ऐसा बोले भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब गैरुल्लाह को पुकारना भी था और भी था। तमीज़ें शुरू हो गई आपके घर से। गौस भाई क्यों ऐसी? गौस भाई 17, 18, 19 मिनट हो
चुका है, आपके तरफ से कोई आपकी जवाब नहीं आया आपके बचाव का। नाजरीन, वो तो नाजरीन ही देखेंगे ही। पहली बात ये है कि पहली बात तो ये है कि आपका मिजाज वो अलग बात है कि आप थोड़ा अपने चैनल से पैसे कमाने के चक्कर में कोई पैसा नहीं कम भाई, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है भाई। आप जैसे मैं नहीं हूँ। कोशिश करें। मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं नहीं समझना नहीं, आप मेरे को फर्क बताइए ताकि बात समझना ही नहीं चाहते हैं। अब बताएं जब क्या मैं समझू भाई, आपने पूरी। अच्छा पहले बोल ले भाई, जल्दी कर, एक मिनट बोलने चले। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैं आपसे सवाल किया हूँ। पहली बात, मैं कुरान तक को दलील दिया कि उनके जो अकायद थे कि वो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बना लिए थे, इलाह बना लिए थे, वो इबादत वगैरह का मामला था। अब जरा सोचें कि आप बार बार कह रहे हैं कि बरेलवी उससे भी बदतर मुशरिक है। अब बताएं कि मैं आपसे सवाल किया कि बरेलवी अगर उनसे भी बदतर मुशरिक है, एक मिसाल पेश करें तो अभी तक आप पेश नहीं कर पाए। क्या पढ़ी मैंने? आपसे सवाल किए कि वो मैंने क्या पढ़ी? एक मिनट। मुशरिकीन मक्का जो थे, मुशरिकीन मक्का, वो आप जो कुरान अनकबूत आयत नंबर 65 मैंने क्या पढ़ी थी? हाँ, अच्छा, मैं सूर्य अनकबूत का भी मैं जवाब दे रहा हूँ, टेंशन। अरे कब जवाब दोगे मेरे भाई? 20 मिनट हो चला है भाई। फिर मैं आपसे सवाल किया, क्या सवाल किया? अरे यार फिर सवाल किया। चले कोई बात नहीं, हो गया गौस भाई हो गया। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, कोई एक फर्क नहीं बता पाए अपने और मुशरिकीन मक्का के आप जो इबादत पर। सूर्य अनकबूत का जवाब नहीं लेना, सुने तो सही। आप अभी 20 मिनट में अच्छा देख ले। जवाब दीजिए। आप तफसीर खादिन उठा करके देख ले, कहते हैं कि वो आप जो सूर्य अनकबूत की आयत नंबर 65 जो बताए थे, तो वहाँ पे कहते हैं फैदा रकीबु फिल फुल्क, और यानी कि अब इसकी पूरी तफसीर बयान करते हैं। तफसीर बताए ना भाई, क्या कहते हैं? फिर जब लोग कश्ती में सवार होते हैं, इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि ज़माने जाहिलियत के लोग बहरी सफर करते वक्त बूतों को साथ ले जाते थे, और दौरान सफर जब हवा मुखालिफ चलती और कश्ती डूब जाने का खतरा पैदा हो जाता तो वो लोग बूतों को दरिया में फेंक देते और यारब यारब पुकारने लगते, लेकिन अमन पाने के बाद फिर उसी शिर्क की तरफ लौट जाते, यानी वो बुत को साथ रखे रहते थे। अरे यार थोड़ा असलाफे किराम को भी तो थोड़ा चेक कर लें कि उन्होंने इस आयत को क्या मुराद लिया है। हो गया मुतलकन किसी आयत को हो गया। आपसे मैं सवाल क्या किया हूँ, पहले इसका जवाब हो गया कि मुझे जवाब ले ले हजरत। एक ही बात नहीं बोले, बूतों को फेंक देते थे। अरे भाई ओ मेरे समझा मेरे दोस्त, बूतों को फेंक देते थे और बूतों को फेंक करके अल्लाह को पुकारते थे। और तुम क्या करते हो कि अल्लाह को नहीं पुकारते हो, मुर्दों को पुकारने लगते हो। वाह, ये तो और तुम क्लियरिफिकेशन दे रहे हो मेरे भाई। मतलब बुद्ध से भी बदतर है ये अरे बुद्ध से, अरे मैं तो बोला बुद्ध से बदतर का क्या मतलब है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? मतलब बुद्ध से अच्छे हैं वो? हाँ नहीं बुद्ध। अच्छा, मुशरिकीन मक्का ने बुद्ध किसका बनाया था? अरे वो इबादत के लिए बनाया, उनका छोड़े, वो किसका बनाया था? इबादत के लिए बनाया था, समझ करना। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल, मैंने आपसे सवाल यही किया था कि एक आदमी इबादत के लिए समझ कर बनाए और एक आदमी इबादत के लिए नहीं समझ कर बनाए, काम वही करे। हो गई बात आपकी। भाई आप जवाब तो दे नहीं रहे हैं, आपने अभी तक एक फर्क नहीं बताया। आपका जो आपके सवाल का जवाब मेरे ही सवाल में मौजूद है, अगर जवाब आप खुद दे देंगे तो जवाब दीजिए ना भाई। सूर्य अनकबूत वाली आयत का मैंने फिर से आपको इनकाउंटर किया, आप उसका भी जवाब दीजिए और इसका भी जवाब दीजिए। चले। अरे भाई मैं तफसीर खाजिन से बता दिया, कुछ तो पढ़ लिया कर। तो इनकार किसको? अजीब आदमी हो भाई। मैंने इनकार किया क्या? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि मुशरिकीन मक्का महज गैरुल्लाह को पुकारने की वजह से मुशरिक ठहरे थे वो। चले, तो आप ये दावा करें ना कि पुकार पर भी मुशरिक थे। मेरे भाई सुन ले, मेरे भाई समझा। आप ये दावा करें ना कि नहीं, महज गैरुल्लाह को पुकारने पर मुशरिक नहीं थे, और भी मुशरिक थे, पुकारते भी थे। फिर से वही सवाल कर रहा हूँ यार, जो पुकार कर रहे हैं आप उस पर तो आ जाए मेरे दोस्त। इधर भाग रहे हो, मतलब पुकारने पर भाग जाओगे? बोले हाँ पुकारते थे, लेकिन छोड़ दो ना उसको छोड़ दो कि तुम भी पुकारते हो। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मुशरिकीन मक्का महज अभी पता चल जाएगा कि वो जो महज का लफ्ज़ क्या है, महज का मतलब क्या है? मतलब एक आदमी कब्र की पूजा करे और एक आदमी जाकर के राम की पूजा करे, तो आप बोलेंगे क्या कब्र की पूजा करने पर ही मुशरिक हुआ? क्या है पूजने से मुराद क्या है? पूजने से मुराद पुकार है। अच्छा, पूजने से मुराद पुकार है, यानी अगर कोई इंसान किसी को पुकार रहा है तो वो पूजना हो जाएगा ना, जो कि शिर्क है। पुकार रहा है वो शिर्क ठहर जाएगा। किसको पुकार रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या पूछा?
अब आप समझे मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान किसी को पुकारे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कोई कब्र पे जाके पुकारे, तो जवाब ले लें, आप जवाब ले लें। पुकारने, आप मुतलकन पुकारने। हाँ, मुतलकन है भाई, मुतलकन या मुक़य्यद जो बोलो आप। अच्छा चले, यानी कि मुतलकन पुकारना शिर्क है, ठीक है? मुतलकन पुकारना शिर्क है ना। अब जरा मुतलकन पुकारना मतलब मुतलकन लफ्ज़ क्या लाए कि भाई पुकार, मैंने कहा है कि आदमी पुकारता है, चाहे मेरी बात समझे, मुतलकन लफ्ज़ जो आप ला रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। उठा करके देखें तीसरे पारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप पढ़ेंगे कि काल मन अंसारी इल्लाह काल अल हवारिय्युन नहनु अंसारुल्लाह, कहा मसीह ने कौन है जो मदद करे मेरी तरफ, अल्लाह की, कहा हवारियों ने हम मदद करेंगे अल्लाह के दीन की। पर ये पुकार रहे हैं, जवाब ले ले भाई, अब इसी पर ईसा अलैहिस्सलाम वाली जवाब ले लो दोस्त। चलो चुप, खामोश रहो, खामोश हो जाओ, खामोश, जवाब ले लो। सूरे अल तो सही थे, अरे जवाब ले लो भाई, ईसा अलैहिस्सलाम वाला जवाब ले लो दोस्त। अरे सुनो तो सही, कितने जा रहे हो, फिर भाग रहे हो। ईसा अलैहिस्सलाम वाला जवाब ले लो। तुमने कहा कि पुकार पर ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों को पुकारा। अल्लाह ताला कहता है वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजिबु लहु इला यौमिल क़ियामा। क्या कहा अल्लाह ने? और इस तक से बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक इसको जवाब ना दे सके। ईसा अलैहिस्सलाम के रुके ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने जवाब दिया था, तुम्हारे मुर्दे जवाब देते हैं क्या? यार मुशरिकीन जवाब दे, रुके तो सुन ले, मुशरिकीन जो है वो जवाब पर मुशरिक हो जाएं। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी जवाब दें, मैं आपको पुकारूं आप जवाब दें। अल्लाह ने कहा जवाब, फिर अल्लाह ने कहा क्या कहा, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे, उन्हें पुकार कर देखो, उन्हें चाहिए कि जवाब दें। बार बार अल्लाह ने जवाब की बात की, आपको किस मुर्दे ने आकर जवाब दिया? चले शुरू करें। अच्छा हो गई बात आपकी, हो गई। अब जरा आए इधर, किधर कहते हैं क्या कि आपको मुसन्निफ अबी शैबा के मुतालिक हदीस मुबारक मालूम होगा कि मुसन्निफ इब्न शैबा की जिल्द 8 है, सफ़ा नंबर 700 और हदीस नंबर 3339 है। उसमें क्या है, ये हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बेशक मुहाफिजीन के अलावा अल्लाह के कुछ जायद फरिश्ते हैं, दरख्त का जो पत्ता गिरता है वो उसको लिखते हैं। नबी फरमाते हैं कि जब तुम जंगलों में जाओ तो जब वहाँ पे तुम्हें कोई न मिले तो तुम इतना कहना या इबादिल्लाहि अईनुनी, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो जब वही साहबा किराम ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल, वहाँ पर तो कोई होगा नहीं, तो नजर भी नहीं आएगा, तो फिर आखिर मदद कौन करेगा? सुनो एक मिनट, सुनने पूरी बात। तो नबी ज़ईफ़ उठा के लाए हो, अरे सुनो तो सही, नबी ज़ईफ़ उठा के लाए हो अकीदे में। अरे सुनो तो सही, क्या बोल रहा हूँ, चले ज़ईफ़ पर ही बात कर ले भाई, ज़ईफ़ को सही मान लूंगा। चले शुरू करें। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो कि तुम्हें नजर नहीं आते हैं। सुनो 70 बार सुन चुका हूँ मेरे भाई, जो कि तुम्हें नजर नहीं आते हैं, नजर नहीं आते या इबादिल्लाहि अईनुनी, तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब मुझे इतना बताएं कि वहाँ पे तो जवाब तो मिल नहीं रहा है, हो गया? इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब भाई? जवाब ले ले मेरे से। सामने कराम देखे गौस भाई ने क्या किया। अरे रुके भाई, सामने कराम देखे गौस भाई ने क्या किया, अकीदे में ज़ईफ़ उठा, अरे रुके ना भाई, गौस भाई ने क्या किया, अकीदे में ज़ईफ़ उठा के लेते आए जो मतलब रिवायती बेसनद है और रिवायती ज़ईफ़ पर मौजू मनगढ़ंत है। आप सुने मेरी बात को, रुके सुन तो नहीं, अरे पूरी बात सुन लो ना गौस भाई। हाँ सुनको भैया, देखिए सामने कराम, मैंने इनसे कहा कि मेरे भाई देखो बरेलवियों समझो, जब अल्लाह ताला किसी बात की तरदीद करता है ना, किसी बात का रद्द करता है, तो दुनिया का कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ है जो उस बात को तायीद में ला सके। अल्लाह ने रद्द किया जिस बात का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात की तायीद कैसे कर सकते हैं? मतलब हदीस जो है वो हदीस ही ज़ईफ़ है, सबसे पहली बात सनद भी कमजोर है, लेकिन ये आदमी उठा कर लाया, तो अल्लाह ने रद्द क्या किया कि जवाब लो। ये आदमी बोल रहे कि जवाब तो नहीं दे रहे हैं, अल्लाह बोल रहा है जवाब लो, मुशरिकीन को अल्लाह बोल रहा है जवाब लो, इसको बोल रहा है कि तुम जवाब मत लो। वाह रे वाह। अच्छा, मुशरिकीन जिसको पुकारते थे, अल्लाह ने कहा तुम्हारी तरह के बंदे हैं। फिर अल्लाह ताला ने क्या कहता है कुरान में कि मैं पूछूंगा बंदों से, जिनको तुम पुकारते थे ना मैं उनसे पूछूंगा। यानी मुशरिकीन पुकारे तो मुशरिक, ये पुकारे तो मुआहिद। वाह, अल्लाह ने जिस बात की तरदीद की मुशरिकीन के बारे में, ये आदमी उसकी तायीद में लगा हुआ है।
मेरे भाई रद है मुशरिकीन का या नहीं है? तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं तुमको शुरू से ही पूछ रहा हूँ, क्या मुतलकन महज पुकारना ये? यार मुतलकन का तो पूरा जवाब तुमको दिया मैंने, फिर तुम वहीं पे लटक गए। ये अच्छा चलो, मुतलकन अगर पुकारना शिर्क है, मुतलकन अगर पुकारना शिर्क है, तो तुमने तो ये कहा, क्या कहा तुमने? ये कहा क्या कि जो जवाब नहीं देंगे तब वो शिर्क जुमले में शामिल होता है। तो मैं आपको वो हदीस दिया, कहा आपने उस हदीस को ज़ईफ करार दिया, हालांकि इमाम इब्न हजर अस्कलानी उस हदीस को सही करार देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं सिर्फ यहीं तक मुनहसिर नहीं बल्कि। अरे तो आप बोलो ना भाई मेरे दोस्त, ये सुनो मेरे दोस्त एक मिनट, मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, आप ये बात बोलो ना कि इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने इस हदीस को सही कहा है और मुशरिक वाला ये काम है और ये मुशरिक के जैसा काम है, पर हम करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। पहली बात की तुमने जो कैद लगाई है उसूल एक जो बनाया है कि जो जवाब नहीं देंगे, भाई अल्लाह ताला ने बोला ना, यार मुझको बोल रहे हो यार तुम। पहली बात कि तुमने अरे पहली नहीं, अल्लाह ताला ने भाई ये तुम मुझको बोल रहे हो यार, अजीब व गरीब आदमी नहीं हो तुम। अल्लाह ने कहा जिनको तुम अल्लाह से पुकारते हो, तुम्हारी तरह के बंदे हैं, उन्हें पुकार कर देखो, उन्हें चाहिए कि जवाब दे। फिर अल्लाह ने कहा और इससे बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक जवाब नहीं दे सके। यार मुझको बोलते हो यार, तुम काम करते हो मुशरिक वाला, मुझको बोलते हो भाई। बोलने तो दो। पहली बात ये है कि तुमने कहा क्या कि मुतलकन पुकारना शिर्क है, ठीक है। जब मैं मुतलकन की पेश किया तो तुम वहाँ पे कैद लगाए, नहीं वो जवाब नहीं देते। अरे बेवकूफ, मुतलकन पुकारना हो जब कैद लगा रहे हो वहाँ पर कि नहीं उसमें जवाब भी देना है। अच्छा कैद मैंने लगाया क्या? अगर जवाब अगर नहीं देगा ना गौस भाई कैद मैंने लगाया, मुकैदन न हो गया। अरे बेवकूफ, क्या मुकैयद कैद लगाया, क्या लगाया? तुमको इतना भी मालूम नहीं कि एक चीज को तुमने मुतलकन कहा। जब मैं मुतलकन वाली आयत में कुरान से पेश किया हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को कहा कि कौन है, तो हवारियों ने जवाब दिया ना। एक मिनट। अच्छा हवारियों ने जवाब दिया कि नहीं दिया? अरे मुतलकन न क्या, मुतलकन में वहाँ तो आप तो ये कैद रहती नहीं कि वो जवाब दिए या न दिया। मुतलकन की बात हुई, अब उसमें कोई कैद ही नहीं लगाना। मुतलकन को उठा के तुम लाए ना भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कि मुतलकन से मतलब क्या है। मतलब तुमको मुतलकन अभी तक समझ नहीं है? नहीं आप बताओ मुतलकन, नहीं बात बताओ कि मुतलकन से क्या समझाना चाह रहे हो? दीन के मुनाजरीन का तुमको ये भी नहीं समझ में आता कि मुझको सब मालूम है भाई, तुम एक जवाब नहीं दे पा रहे हो, तुम उठा के ला रहे हो मुतलकन पुकारा, तो तुम मुक़य्यद किसको पुकारते हो? कोई एक आदमी का नाम बताओ ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने सारे मुर्दों के साथ पुकारो या गौस या, सुनो तो मेरे भाई, या गौस या अली या फलना या ढमकाना, ये मुतलकन होगा कि नहीं होगा? एक मिनट, मुतलकन को तुम समझे ही नहीं कि मुतलकन किसे कहता। अरे यार सारे मैं सब समझाऊं भाई, तुम उठा के लाए मुतलकन, क्या है मुतलकन समझाओ दो भाई मेरे को, समझाओ। मतलब तुमको मालूम नहीं है कि मुतलकन किसे? अरे मुझको सब मालूम है, मैं मुस्तहिद आज़म हूँ, समझाओ ना भाई, आप किधर रहे हो? ये है गैर मुक़ल्लिदीन के। अरे फिर होना देना चाहिए गौस भाई। अरे मुतलकन क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि तुम जो है अगर पूरे अपने मुर्दों को पुकारोगे तो ये मुतलकन होगा या मुक़य्यद होगा? अरे सुनो तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे सुनो तो सही, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने मुतलकन महज पुकार को तुमने शिर्क कहा, समझ रहे हैं? महज पुकार को शिर्क कहा किसको? ये अलग बात। किसको पुकार को शिर्क कहा मैंने? ये ऐसे को पुकारो जो ऐसे को जो जवाब नहीं दे सके। सुन लेना, तुम मुतलकन पुकार को शिर्क कह रहे हो। पुकार को मुशरिकीन मक्का मुतलकन पुकारते थे कि मुक़य्यद पुकारते थे? मैंने जब मुतलकन पुकार की दलील दी, मुशरिकीन मक्का मुतलकन पुकारते थे कि मुक़य्यद पुकारते थे? मैं क्या कह रहा हूँ? अरे तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात नहीं सुननी मेरे को। मुशरिकीन मक्का मुक़य्यद पुकारते थे कि मुतलकन पुकारते थे? जिनके पास जो है ना अकल नहीं होती, उनकी अकल। अरे मुशरिकीन मक्का मुतलकन पुकारते थे कि मुक़य्यद पुकारते थे? रहने दो। अरे यार मुशरिकीन मक्का का नाम भागते क्यों? अरे मुशरिकीन मक्का मुतलकन पुकारते थे कि मुक़य्यद पुकारते थे? उसको तुम तो मुक़य्यद की तरफ जबे मत करो। अरे मुशरिकीन मक्का मुतलकन की मुक़य्यद क्लियर करो यार। अरे ये जवाब तो तुम दोगे ना, ये जवाब, क्योंकि वो गरीब आदमी हो मेरे भाई। अल्लाह ताला ने साफ तौर से कहा कि और वो कहते हैं कि रब के पास हमारे सिफारशी हैं और तुम जिसको पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे हैं, ये मुतलकन है कि मुक़य्यद है?
اچھا یعنی کہ یعنی نہیں کرنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بولا کہ تمہاری طرح کے بندے ہیں یہ مطلقاً ہے کہ مقید ہے؟ یہ صورتحال ہے غیر مقلدین. ارے یہ مقید ہے کہ مطلقاً ہے میرے بھائی؟ کلیئر. انگلش ہے کہ نبی تسلیم کی سفارش فرمائیں. ارے کیا اس کا کیا مطلب؟ نہیں کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری طرح کے بندے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، یہ مطلقاً ہے کہ مقید ہے؟ یہاں پہ بندے کی بات ہی نہیں، یہاں پہ پکار کی بات ہے. اچھا تو بندے کو نہیں پکار؟ ہمیں تو کم نہیں چلے گا. چلو ہو گیا بھائی، ہو گیا. بندے کو نہیں پکار رہے ہو، پکار رہے ہو. اچھا چلے رہنے دے. ناظرین خود فیصلہ کر لیں گے. ارے کدھر سے آتے ہو یار. اور آپ کو جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلو ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اپنے حواریوں سے کہیں کہ ہاں کون ہے جو میری مدد کرے، قال الحواریون، تب بتائیں کہ اس اعتبار سے تو آپ خود مشرک ٹھہرے نا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر پکارا اپنے حواریوں کو، تو مطلقاً پکار